Where I start? Any doubts? वर्कशीट्स मिल गए आपको? नहीं, कल प्रिंट हो चुके हैं, वर्कशीट ले लेना। This was a trial and error question, a bit difficult one. हो गया ट्रायल एंड एरर ना? गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा अभी स्टार्ट किया। दिस इज अ ट्रायल एंड एरर क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा वो। We have a cube and it is being painted. The cube is cut into 36 smaller cubes. 36 clearly is not a cube number. So all cubes are not of same size. So we have 32 small cubes and other 4 are big cubes. Okay. So कुछ बड़ा cube है. We are cutting them into 2 different types of smaller cubes. एक है छोटे, एकदम छोटे क्यूब, और एक है मीडियम साइज के, बड़े मतलब थोड़े, और टोटल मिला के वॉल्यूम वुड बी इक्विवेलेंट टू द बिगर क्यूब। करेक्ट? बिगर क्यूब पूरा मिलके काट रहे हैं ना। Earlier, whenever we solved the question, it was like कि side was some a and a cube was the volume, है ना? And number of smaller cubes was a cube because side of smaller cubes we always took as 1. 1 के इसमें काट रहे थे हम लोग। Now we have this 32 cubes whose volume would be, if we take them as side 1 cube, ये 32 small cubes है और 4 big cubes है ना, और टोटल मिला के वो लोग बड़ा क्यूब बनाएंगे। We have 32 smaller cubes and 4 bigger cubes. Total they will form a cube which has been cut.
So let smaller cube has side 1. साइड कुछ दिया नहीं है, हमारी साइड से हम 1 ले रहे हैं. So what would be the volume of such smaller cubes? 1. 1 cube is 1. So 32 का वॉल्यूम होगा 32. The bigger one, they have some, let us say side A. Let us assume उनका वॉल्यूम होगा अभी A cube, and there are 4 of such cubes. 4A cube. This will be the total volume of cubes that is. हाँ, other 4 बोला ना. 2 types of cubes, वो भी बोला है. The cube is cut into 2 different sizes, 1 size and 2 size. That size is same. So that 4 cubes will form equivalent to 4A cube volume. And this total will give me volume of entire cube, which will be a cube number, because that उसका volume क्या होगा, some cube होगा. But this is 32, so bigger cube cannot be of size 3, है ना. मतलब ये 32 है ना, तो whatever volume of bigger cube which has been cut, that has to be greater than side 3 ना. 3 का 3 साइड होता तो 27 होता क्यूब नंबर, क्यूब उसका. हाँ, तो हमने छोटा साइज 1 मान लिया है. I assumed smaller cube has size 1. तो volume of that smaller cube is 1. 1 cube is 1. And there are 32 such cubes. हाँ हाँ, अरे ये है. मैंने 1 assume कर ली उसकी साइड. Correct. And this total will give me a volume of entire cube, which will be a cube number. वो क्या होगा इसके बाद, 64 ही होगा या 125 होगा या 216 होगा, because it has to be greater than 32, no? So let us start with 64. If this is 64, then you have this 32. 32 into 1 is 32. You subtract this side. 4A cube is equal to 64 minus 32 is A cube is equal to 8. A is equal to, बैठ गया. So आपको भी ये पता चल गया कि we have a bigger cube of size 4 by 4 by 4, and it has been cut into 32 cubes of size 1 and 4 cubes of size 2. So yes, नहीं बिल्कुल नहीं, इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन क्या है? तो उसके लिए ओरिएंटेशन भी चाहिए रहेगा हमें, कैसा है क्या है. Solid cube is painted yellow, blue and black such that opposite faces have same color. We have this kind of cube. Of size 4. This is the cube. अब क्या करना है हमें? We want to cut it such that there are 4 cubes of size 2 by 2 by 2 and 32 cubes of size 1 by 1 by 1. ये 64 लिया ना हमने. 64 मतलब क्या होगा, साइज 4. हाँ, हम लेके देख रहे हैं. दिस इज ट्रायल एंड एरर. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द मैथमेटिकल वे ऑफ डूइंग. और क्वेश्चन भी ट्रायल एंड एरर वाला ही था. एग्जाम में नहीं होता ये क्वेश्चन. तो what are the possibilities for placing 4 2 by 2 by 2 cubes? मतलब उन्होंने बोला है कि पेंट करना है ब्लू येलो रेड और मतलब अपोजिट फेस को, और नन ऑफ देम आर ब्लू पेंटेड, मतलब जो भी बड़े-बड़े हैं. Yes, that is given. None of the 2 by 2 by 2 are painted blue. So if one
कुछ तो एक फेस ब्लू ब्लू करेगा ना, तो 2 by 2 कैन नॉट कम देयर, वो बीच में ही होंगे ऐसे। अगर ये और ये ब्लू है, इफ दिस इज ब्लू and this is also blue, then 2 by 2 cannot be exposed to those surfaces. So it has to come in such that they are not exposed. Blue. It has to come like this, such that it is not exposed to that surface. It has to come like this. ये दो, ये दो. Then पीछे वाले दो. Correct? बीच में ऐसे 4 हो गए. And then these are 16 and that side 16. ये 16 है ना इस फेस पे. हाँ हाँ फेस पे 1 2 3 4 नीचे वाला एंड दिस फेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 on this face 16 on that face. So हो गए 32 plus 4 36. So we are through. Question is how many cubes we have with only one surface painted. तो इस सरफेस पे ये बीच वाले 4, इस सरफेस पे बीच वाले 4 अगेन. वन सरफेस, ये एज पे लेंगे तो 2 सरफेस पेंटेड हो जाएंगे ना. वी हैव टू टेक cubes which are not on the surface, but not on the edges. So we have to come one inside from each edge. So this 4 on this side, and here there are no such things because this is also on the edge, this is also on the edge, this is also on the edge, which wala is also on the edge. This is 2 by 2 by 2. So 4 plus 4, answer is 8. This was a difficult question, trial and error question. एग्जाम में सॉल्व नहीं होता ये, आप थोड़ा खेल सकते हैं इसके साथ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आगे बढ़ो. हाँ मतलब ट्रायल एरर के बारे में क्या ही कर सकते हैं. ये भी मतलब थोड़ा मेरे साइड से अपने मैंने डाला है, अदरवाइज इफ यू सी द अदर एक्सप्लेनेशन दे डोंट सी इट लाइक दिस. चाहिए था, पता है क्यों 64 चाहिए, तो मेरे 32 करना है, 32 4 से मल्टीप्लाई कितना है 8 से, और 8 क्यूब भी है, मतलब मैंने वही किया तुमने जो यहाँ पे किया. हाँ एनीवे चलो नेक्स्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. शगुन थोड़ा ट्रायल एरर था वो, आप लेट आए ना, आप लेट ज्वाइन किया आपने, या वो क्वेश्चन के लिए पूरा थे आप? अच्छा, तो क्वेश्चन was saying that we have a cube that we are painting and we are cutting it into 36 smaller cubes of 2 different sizes. That is also given. 36 is clearly not a cube number, so we are not cutting it all in the same size. So 32 of them, of these 36 smaller pieces, 32 are small and these are 4 are big. So we are cutting them in such a way. So I am assuming that let the smaller ones, that these 32 pieces have size 1, and if nothing is given, I am assuming 1 from my side. So what is the volume of those 32? 32 into 1 cube. And what is the volume of 4 bigger ones? I am assuming side of the bigger ones to be A. So volume of them to be 4A cube. And total, it will give me volume of this solid cube that is being cut. And volume of that cube has to be a cube number. So I'm taking all the cube numbers one by one after 32 and seeing which one will fit. So next cube number after 32 is 64. So if I put 64, automatically everything fits and size A becomes 2. So I got to know that smaller cubes that are 32, they have size 1, and bigger ones that have size
2. Smaller ones have size 1, bigger ones have size 2, and overall the cube has size 64, as we have taken cube to be 60, volume to be 64. So I started painting it, or plotting it rather, and I got this kind of figure. And it is also given that the bigger ones, that 4 bigger ones, do not have exposure to blue surface. So opposite are painted blue. Let us assume that these opposite ones are painted blue. So the size 2 cubes have to come in the middle. Why? Because they cannot be colored blue. That is given. So one from inside, one from inside. 2 has to fit here. 1, 2, 3, and 4, and rest of them are 1, 1, 1. So this 16, this 16, 32, and these 4, they become 36. And question now is, how many cubes are there such that only one surface is painted? Meaning we have to find out smaller cubes or bigger cubes having only one surface painted. That is the cubes which are on the surface but not on the edges. So on the surface but not on the edges, matlab ye beach wale. So these 4, the 4 on this surface, and that is all, because the 1, 2, 3, 4, they are all on the edges. See, 1, 2, exposure to 2 surface, exposure to 2 surface, exposure to 2 surface. That is how we got 4 these and 4 on this side as so 8 as answer. तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर है, बट स्टिल एग्जाम में ये नहीं आता दिमाग में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. तो ये देखो ना, look at this 1 and 3, this and this, same orientation. तो 1 के अपोजिट 3 आएगा, 2 के अपोजिट 4 आएगा. तो 1 डॉट के अपोजिट 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, और इसके अपोजिट बचा हुआ प्लस क्रॉस जो भी है, बस खत्म. दैट वाज द क्वेश्चन. व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट ऑफ सिंगल डॉट 3 डॉट? What is the symbol on face opposite containing 2 dots? 4 dots. What is the symbol on face opposite to cross line? खत्म. इतने 4 चाहिए ही नहीं तुम्हें. They have given extra information. Or if you want to do it by Jayesh method, you can start with this. क्यों नहीं लगेगी? This is clockwise. So you have line 2. This is line. Line I'll write L. Line 2 and 1. And here you have line 4 and 3. So 2, 4, 1, 3. Line is rest. Bachao. Clockwise. Line 2, 1. And here line is in the same orientation. So line 4, 3. Line 4, 3. Same orientation यहाँ पे है ना लेके. So we have L4, 3. So we have pairing. देखो 2018 का क्वेश्चन है. 3 questions you could have done in 10 seconds. Next question correct? Try it out.
ओके डन. Yes, correct. Correct. Sandeep, Tanvi, Shagun, Ashwini. Good. हाँ कौन सा है ना. हाँ हाँ वही वही. क्या हुआ. 8 आ गया निरंजन. नहीं देखो नो सरफेस पेंटेड. नो सरफेस पेंटेड सो बेसिकली वी डोंट वांट एक्सपोजर टू सरफेस. सो हर एक से एक अंदर आना है. पेंटिंग नहीं चाहिए सरफेस पे. सो एवरी साइड फ्रॉम एवरी साइड वी हैव टू कम इन वन इनसाइड. साइड इज 4. वन फ्रॉम हियर वन फ्रॉम हियर. बचे 2. One from here, one from here, 2. One from here, one from here, 2. So we have 2 by 2 by 2 by 2 by 2 by 2 cube inside a 4 by 4 by 4 cube, and that cube is not exposed to any surface. So those are the cubes which are not going to be painted. So 2 by 2 by 2 meaning volume 8. 2 cube. Correct? Next करना है. तो फॉर्मूला किसका n minus 2 cube. बट फॉर्मूला का वही है कि जैसे अगर उन्होंने मॉडिफाई कर दिया कुछ क्वेश्चन तो प्रॉब्लम हो सकती है. क्यूब की जगह क्यूबॉइड कर दिया. यहाँ पे तो 4 by 4 by 4 was a cube. Question if the question was जैसे इस साल आया था the cuboid of size 7 by 5 by 3, then what would happen? How many are not colored? तो 7 वाली साइड से 2 इनसाइड आ जाओ 5. 3 वाली साइड से 1 इनसाइड 2 इनसाइड आ जाओ 1. एंड 5 वाली साइड से 2 इनसाइड आ जाओ 3. So we have a cuboid of 5 into 3 into 1. What is the volume? 5 into 3 into 1, which is 15. तो 15 आंसर होगा उस केस में. जो था इसको एग्जैक्टली सवाल था इस बार है ना. सो अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो ये नहीं हो पाएगा फिर क्वेश्चन. कंसेप्ट याद रखो. What were we doing and why? We don't want our cube to be exposed to the surface. क्योंकि surface को expose हो जाएगा तो paint हो जाएगा. हाँ. अगर अलग अलग साइड्स होंगी जैसे if it is a cuboid something like this and we want to find out this 7, this is 5, this is 3, and how many cubes are not painted. We are painting all the surfaces, any color doesn't matter. ठीक है. So what do we want? We don't want our cube and we cut it into one by one cubes. Smaller cubes are one by one. So we don't want our smaller cube of one by one to be exposed to this surface. और surface पे expose हो जाएगा तो color हो जाएगा. एक तो surface color हो जाएगा ना ऊपर का. We don't want it to be exposed to this surface or any of the 6 surfaces. So imagine we are in the room and all these are cubes, smaller cubes. You are a cube. You don't want to get colored. So where you have to be? In the middle. क्योंकि ऊपर जाएगा तो कलर हो जाओगे, नीचे जाओगे तो कलर हो जाओगे, इधर 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 कहीं भी इफ यू गेट एक्सपोज टू द सरफेस यू विल गेट कलर्ड, है ना. बीच में मतलब कहाँ पे. अब ये 7 वाली साइड है
यस, यू हैव टू कम वन इनसाइड ताकि एक्सपोज ना हो। इधर से भी एक अंदर आ जाओ, बचे कितने? 5। दिस इज 7 ना। इफ दिस इज 3, वन इनसाइड, हाँ, दिस इज वन इनसाइड, दिस इज वन इनसाइड, 3, ये अगर 3 साइड है, वन इनसाइड, वन बचा बीच वाली ये लाइन। 7 से वन इनसाइड कितना बचा? 5, एंड रेस्ट ऑफ द साइड इट इज 5 से अगेन वन बचा, 3 बचे। यस, देन देयर विल बी नो क्यूब विच इज अनकलर्ड। हाँ, अगर दो ही है, ऐसा है, तो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, तो ऑल इट विल ऑलवेज बी कलर्ड। हाँ, फिर क्वेश्चन विल बी जीरो, आंसर विल बी जीरो देन। यस। हाँ, तो ऐसे ही 4 by 4 by 4। हाँ, 2 2 2 2 into 2 into 2। हाँ, वो वन सरफेस पेंटेड है ना। हाँ, क्यूब भी बनेगा ना अंदर, क्यूब बनेगा ना। इस साइड से 4 और इस साइड से अंदर जा रहा है, यहाँ यही जा रहा है, यही हो रहा है, मतलब क्या है, क्या है, ऐसे रखे हो, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ये होता है कि ऐसा है, आंसर नहीं पता है। ऊपर ये देखो, ये समझ में आ रहा है क्या? ये दिख रहा है क्यूब के अंदर क्यूब, बिकॉज वी कम वन फ्रॉम बिलो, वन फ्रॉम अबव, one from front, one from back, one from right, one from left. So we have a cube inside a cube wherein we don't have any colored surfaces. What is size of this cube? 2 at 2, 2, 2. So how many cubes are there in the 2 by 2 by 2 of size 1 by 1 by 1? ये भी सारे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सामने 4 पीछे 4। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, here easier thing to do would be open the cube, correct? Then we have y, o and b are on the adjacent faces. So y, o, b adjacent है. Then we have I, G and Y. I is also adjacent to Y, so I is not going to be here. G and Y, na? With Y, I and G are adjacent.
So none of them come here. So I can come here or G can come here. ये Y का अपोजिट होता है ना? हाँ. So Y, G and Y, I and G, they are adjacent. So I and G cannot come opposite to Y. So यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ पर और यहाँ आ सकते. I and G will come here or here. Let us see what happens more. B, G and Y. डाल के देखते. अगर नहीं हुआ तो अपोजिट कर देंगे, स्विच कर देंगे. थर्ड, B, G and Y are adjacent. B, G and Y are adjacent. आ गया सही प्रॉब्लम. यस. तो मतलब B के अपोजिट G नहीं है तो I ही होगा. These are the opposite ones. And next, O, V and B are adjacent. O, V and B. तो V बचा इधर ही. That is going to be the. ठीक है. अरे वो तुम्हें थोड़ी पता है कि वो क्लॉकवाइज में दिया है. क्लॉकवाइज दिया नहीं है ना. क्लॉकवाइज दिया होता तो वो आ जाता अपना ओरिएंटेशन से. हाँ. जैसे देखो येलो के नीचे येलो ही होगा ना. दोनों सेम कलर है. ग्रीन के नीचे ग्रीन ही होगा. आई के नीचे भी हो सकता है. क्या IGY लिखा. हाँ. और BGY लिखा. हाँ. तो YY तो सेम ही कलर है. हाँ. GG भी सेम कलर है. तो I के ऊपर भी हो सकता है. हाँ. और उसके बाद YOB और नीचे OVB. तो OB ऊपर भी कॉमन है. तो Y के ऊपर भी हो सकता है. और सीधे जैसे IGY लिखा हुआ है, BGY लिखा हुआ है. GG पूरा करते हैं तो I के ऊपर D होगा. ठीक है. और आप मतलब करके भी दे सकते हो. सेम आपका जो आंसर है वही है. I खुद नहीं आता है. सही बात है. समझ गया. हाँ मतलब अगर उन्होंने ये नहीं बोला था, एडजस्टिंग नहीं बोला होता ना. हाँ. फिर नहीं बोलता. तो क्लॉकवाइज मैनेज कर लेंगे. हाँ. नहीं उसका बात यह है ना कि वी हैव टू कलर्स कॉमन. हियर G and Y are common. So if these two colors are here, then adjacent to these two is going to be either this or this. एक में ये दिया तो they are going to be opposite. आपको कोई भी अच्छा लग रहा है, कोई भी कर लो. ये ठीक लग रहा है. ओपनिंग अप ऑफ अ क्यूब. ठीक है. ये थोड़ा सा वो आ रहा है कि मतलब गलत. We just have to open the cube and plot the rest of the things. I open, ऐसा दिखता है ओपन किया हुआ क्यूब. And in such opening, this is opposite to this, this is opposite to this, and this is opposite to this. In opening of cube, ये और ये अपोजिट होते हैं, ये और ये अपोजिट होते हैं, और ये अपोजिट होते हैं. ऐसा ओपन किया ना. फोटो भी देखो आप बुकलेट में जो दिखाया था पहले. एक छोड़ के अल्टरनेट आर अपोजिट्स. कहीं से भी ले लो, फेसिंग कोई भी ले लो, वो तो क्यूब है. मतलब इसको ऐसा खड़ा कर दिया, उसको ऐसा खड़ा कर दिया, और उसको ऐसे ढक दिया. तो अल्टरनेट वंस आर अपोजिट वंस. बाकी ऑल आर एडजेसेंट. ठीक है. हाँ, बाकी तो एडजेसेंट होते हैं. तो वी स्टार्ट विद YOB एडजेसेंट. मैंने कहीं पे भी YOB लिख दिए. बस अपोजिट नहीं लिखना है उनको. Then next is IGY are adjacent. So I and G are not opposite to Y. So I and G can be here or here. मैं ट्राई करके देख रहा हूँ here or here. It can be like this or YOB GI हो सकता है. तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा. In any case, तो कौन सा फिट हो रहा है देखूंगा मैं. BGY are adjacent. Here BGY are adjacent. BGY यहाँ पे अपोजिट हो रहा है लेकिन. So this is not going to be the case. This is going to be the case. है कि नहीं?
सही तो है, ये गलत कर मतलब आई कंसिडर टू पॉसिबिलिटीज एंड आई एलिमिनेट वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. Jayesh was talking that we have two things common here, G and Y, G and Y. हाँ, क्यों? Because when we have two things, हाँ, when we have two common things, मतलब this and this, let us say, if they are the green and yellow because they are adjacent, कोई भी ले लो. So third thing that is going to be adjacent to these two, either ये होगा या फिर ये होगा. If you want a surface which is adjacent to both, या तो ये होगा या तो ये होगा. यहाँ पे I दिया है, यहाँ पे B दिया. One is going to be I, one is going to be B. They are going to be opposite. Solution क्या पूछा है? O के opposite ना? यहाँ पे V and O and B are common. O and B यहाँ पे यहाँ से क्या आ गया अपना? I is B opposite to B. यहाँ से क्या आ गया? O B are common. So Y is opposite to B. So अब green is opposite to V. नहीं. O. I feel opening is better. अगर आपको ये आसान लग रहा है आप ये कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, आई फील ओपनिंग इज बेटर, बट आपको अगर वो आसान लग रहा है तो वो कर लो. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमने किया है ना पहले. यस यस वी हैव डन दिस. हाँ, एचसीएफ नहीं, लीनियर इक्वेशंस वाले में किया हमने शायद. अच्छा, सो वी हैव डन दिस अर्लियर. ये यहाँ पे आया ही क्यों क्वेश्चन पता नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The three orientation of the same cube is given and question is what is on A and B. Okay. आप यहाँ पे जयेश वाला वो लगा सकते हो, ओरिएंटेशन वाला. हाँ, ऐसे भी हो रहा है देख के. राइट, ठीक है. तो वैसे निकालना थोड़ा कठिन है, और अगर वन से निकालना मतलब वन से पता है फाइव का. ये देखो ना, दिस इज द सेम ओरिएंटेशन. वो वाला सेकंड वाला केस हमने ऊपर लिखा था. व्हेन वी हैव ओरिएंटेशन सेम, ऊपर वाला सरफेस सेम, तो क्या होगा? ये अपोजिट टू ये अपोजिट टू ये. वन. हाँ, अच्छा ठीक है. एलिमिनेशन से भी हो सकता है, बिल्कुल होगा. कि आपको सिर्फ एक ही पता होना चाहिए फाइव का फिर वन. Yes, correct. With this same orientation, we have 5 opposite to 1, then 6 opposite to 2. So 5 opposite to 1. So A and B cannot be 1. So only 3 options are eliminated. Only 2 and 3 remain. 5 के opposite है ना वो, तो adjacent तो हो ही नहीं सकता A and B. फाइव अपोजिट टू 1 समझ गए. तो अगर 5 के अपोजिट 1 है तो ये साथ वाली साइड्स, दीज आर एडजेसेंट साइड्स टू 5 ना. अपोजिट साइड तो उस साइड है. सो A and B cannot be 1 because 1 is opposite to 5. So if you eliminate 1, it will be answer A straight away. So 3 to 1. Again same, you have 3 common. So if you take clockwise, we'll have 3, 2, 1.
क्लॉकवाइज 3 6 5, सो 5 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 6 एंड बचा हुआ 2 एंड 3 है, नहीं 2 एंड 3, 3 एंड 4 आर अपोजिट्स। सो 5 के अपोजिट 1 है तो बाकी सारे 5 के एडजेसेंट हो सकते हैं, तो ऑप्शंस आर पर्पसली सेट लाइक दैट। बिल्कुल चल जाता, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये 5 के अपोजिट, हाँ 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 बिल्कुल बता सकते हैं, ओपन करके बता सकते हैं, हाँ बोलो ना। ये आ गया पेयरिंग, हाँ राइट, तो 1 एंड 5 आर अपोजिट, 2 एंड 6 आर अपोजिट, कारण 1 एंड 5 अपोजिट है तो 1 is going to be on this surface ना, all the rest of the 4 are going to be adjacent to 5, बस 1 नहीं होगा adjacent, so A and B cannot be 1, हाँ बिल्कुल एलिमिनेशन ही करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, वाई, बिकॉज फिर तो कहां से फोटो ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ना, ए और बी कहां पे है। नहीं यार गलत नहीं आएगा, पर कंक्लूजन एक ही चाहिए आपको कि 1 is opposite to 5, ओनली विद दैट कंक्लूजन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। एंड ऑप्शन में भी अगर 2 3 के साथ दूसरा कोई ऑप्शन सेट करते हैं तो वील हैव मल्टीपल आंसर्स, क्योंकि फिर वो फोटो किस एंगल से ले रहे हो उसकी बात आ गई फिर। नो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड देन, अगर एक ऑप्शन में 1 नहीं होता तो यू कैन नॉट डिटरमाइन द आंसर यूनिकली, क्योंकि अगर ये 2 एंड 3 है, आप एक ऑप्शन में 2 एंड 6 कर दो तो आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों सही है, किस एंगल से फोटो निकाल रहे हो उस पर बात आ गई फिर। हाँ इट डजंट मैटर, ऑल ऑफ देम आर एडजेसेंट टू ईच अदर। हाँ आप देखिए तो पता नहीं सकते ना क्या नहीं बता, का ऑर्डर जो है हम्म, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक ही ऑप्शन है, हाँ एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब देखो अलग टाइप का ओपनिंग किया है उन्होंने। उसको जोड़ के देख लो कैसा जुड़ेगा वो, मेन चीज क्या देखनी है, अपोजिट किस कौन किसके होगा। दिख रहा है, इसको आर और बी को मैंने खड़ा कर दिया, आर एंड बी, जी वाई ओ को वैसे का वैसा रखा नीचे जमीन पे ही अभी के लिए, जी वाई ओ को जमीन पे रखा, आर और बी को ऐसे खड़ा कर दिया, हाँ ऐसे ऊपर की तरफ, एंड डब्ल्यू को भी ऐसे खड़ा कर दिया। इमेजिन नहीं हो रहा, नहीं आया बहुत टाइम से, अब 2 क्वेश्चन इस साल आया है, 19 में एक भी नहीं आया था, 19 में आया था लास्ट क्वेश्चन। यार अब तो इतनी अच्छी डायग्राम बना रहा हूँ। इमेजिन दिस इज अ टेबल जहां पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वी हैव जी वाई ओ, उसको मैंने वैसे ही रखा टेबल पे फ्लैट पे, अब ये जो फ्लैट पड़ा हुआ है ना इधर पहले, उसको ऐसे खड़ा कर दिया बाहर की तरफ, तो वो कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, हाँ ये
नहीं, यहाँ पे नहीं है वो, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा, वो खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट। एंड ये W, उसको भी खड़ा कर रहा हूं, वो कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट। तो दिस इज R, दिस इज B, दिस इज W। उसको ये जो R है ना, अब खड़ा कर दिया है इधर, ऐसा है वो, उसको मैं इस साइड ले रहा हूं, अंदर की तरफ। हाँ, ये एज और ये एज ज्वाइन कर रहा हूं एंड O को खड़ा कर रहा हूं। हाँ, तो GY ऐसे का ऐसा हो गया, GY, O यहां पे खड़ा हो गया, W यहां पे खड़ा तो पहले से था, W, here we have O, देन B यहां पे खड़ा पहले से था, और ये आ गया अपना R, करेक्ट। R को अंदर की तरफ ले लिया, राइट, O को खड़ा कर दिया, राइट, दिख रहा है, फाइन, और ये W भी खड़ा है। हाँ हाँ हाँ, नाउ आई विल कनेक्ट देम। अब ये तीनों को ऐसे पूरा खड़ा कर दूंगा ताकि क्यूब बन जाए। हाँ, yes, O will come on the top, correct. G will be on the bottom. This will be the cube. Here O ऊपर जाके टॉप पे आ जाएगा ऐसे, W खड़ा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, Y will come this side, नहीं, ये तो W था ना, सॉरी, हाँ, W अभी यहाँ पे खड़ा है ऐसे, तो वो ऐसे हो जाएगा, राइट, दैट विल जस्ट टर्न, O will come on the top, that is there is no doubt, right. Now this is W जो खड़ा है, that will get rotated, तो this is W, Y जो कि अभी कहां पे बैठा हुआ है, it was on the ground, that will stand up, then R वो वैसे का वैसा, ग्रीन नीचे का नीचे, एंड बचा हुआ ब्लू इज गोइंग टू बी पीछे, दैट इज गोइंग टू बी द स्फीयर। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, ओनली सी दिस थिंग्स, व्हेनेवर वी ओपन, जो अपोजिट चीजें होती है वो अपोजिट आ जाती है, G and O are going to be opposite, we just have to decide who is going to be opposite to R and B among Y and W, इतना ही डिसाइड करना है। अपोजिट क्या आएगा, एक छोड़ के आएगा, हाँ हाँ, B and Y, if you again imagine a little bit, B and Y are not going to are going to be adjacent, they are going to share an edge, so who are going to be opposite, R and W and B and W, R and Y and B and W, इतना ही डिसाइड करना था, उसके लिए ये थोड़ा इमेजिनेशन करना है तो करो, अदरवाइज G and O तो सीधा सीधा अपोजिट दिख रहा है आपको, दे आर गोइंग टू बी अपोजिट। यस, क्वेश्चन, व्हाट इज द फेस अपोजिट टू व्हाइट, व्हाइट के अपोजिट कौन है, ब्लैक, ब्लू और ब्लैक जो भी है, बी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, हाँ, again your idea, you can plot it clockwise, so K B A, and from here you can start from K, K M H, what is opposite to A, it is going to be H, क्या दिया है, हाँ, हम्म हम्म,
अगर टू नंबर सेम है, यहाँ पे कोई है नहीं वैसे टू नंबर सेम, हियर वी हैव ओनली वन कॉमन ना, के इफ देयर वर टू थिंग्स कॉमन, so there are three cases. हाँ. कलर का वाइट और येलो और ग्रीन कलर का वो अभी तो येलो ग्रीन का देता है। केसेस पुराना वाला डाउट पूछ रहा हूँ. नहीं नहीं, दैट केस इज व्हेन ओरिएंटेशन वाला, तो वो केस नंबर 2 है व्हेन ओनली वन ऑफ द स्पेसेस इज कॉमन गिवन, जैसे यहाँ पे ओनली के इज कॉमन. दिस वाज द दैट इज द वन ऑफ द केसेस. ही इज आस्किंग अबाउट अनदर केस वेयर टू थिंग्स आर कॉमन. इफ टू थिंग्स आर कॉमन देन जो बचे हुए जो डिफरेंट है दे आर गोइंग टू बी अपोजिट टू ईच अदर. हाँ हाँ हाँ, राइट राइट. Fine, we have done with all the PYQs. Cubes and dice, कोई issue? नहीं ना? Any doubt? हाँ, it's doubtful that question will come because last question was in 2019 and 23 after 4 years they asked 2 questions. अब 24 में पता नहीं इसमें आए कि नहीं. हाँ, आना चाहिए. Okay, that is your hope. कम किस पे आना चाहिए? Which topic should have less questions? हाँ. आपने पेपर फिर सॉल्व किया घर जाके? जब पीएनसी गए तो सारे सवाल सेम ही लग रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी सवाल पढ़ने पर ऐसे मतलब इतना लग रहा है कि आधा है आधा नहीं है, कौन सा यहाँ पे क्या लगा, कौन सा लगाओ, कॉम्बिनेशन लगाओ और फिर उसके अंदर क्या लगाओ, सवाल ही नहीं कुछ. हाँ. डाउट सेशन तो आप जब चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, सिलेबस तो खत्म करने दो. फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम. रिवाइज कर लो, सारे वर्कशीट सॉल्व कर लो, फिर डाउट सेशन ले लेंगे. अच्छा, मैं रिवाइज करवाऊं? ओके, दोनों बोला था मैंने. ये तो मुझे याद नहीं है बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है. इम्पोर्टेंट है. तुम एक्स्ट्रा 5 लेक्चर करवाओगे मेरे से, है ना? इतना करोगे पास उतना करवा चुका हूं मैं. हाँ. पीएनसी आप आ जाओ दूसरे बैच में, पूरा ही आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा. हाँ. चलो नेक्स्ट डायरेक्शंस के पीवाईक्यूज पे चले. कितने हैं इसके पीवाईक्यूज? ज्यादा है? ओके, ये फास्ट कर लेना यार, पर इसमें कुछ आई वांट यू गाइस टू डू इट क्विकर. 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए 20 मिनट में. चलो कम ऑन, 10 एक साथ करोगे, उसके बाद डिस्कस करना है. आई विल गिव यू 20 मिनट्स, तो 10 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, और क्या चाहिए? डायरेक्शन के क्वेश्चन है यार, अगर कोई नहीं हो तो छोड़ दो. इट्स लाइक एन एग्जाम. इट्स 9:10, आई विल कम बैक एट 9:30. फाइन. 9:10 भी नहीं है, ये घड़ी थोड़ी फास्ट है. 9:03 हुआ है. आप लास्ट वाला ना? अच्छा, आप यश आप आ गया जाओ फिर. हाँ, अभी 9:04 हुआ है, so 9:05 I'll take. You have 20 minutes. I'll come back at 9:25. 20 questions, 10 questions है. 10 ही है ना जयेश, पक्का?
10 questions, you have 20 minutes. ठीक है, treat it like an exam. 11 है, चलो 22 minutes. I'll come back at 9:30. Okay, guys, am I audible? Online students, let me know once. Okay, good. मेरा एक ही आपके लिए बेट है, तुम 150 मार्क्स ले आओ सीसैट में, पार्टी ले लो. कुछ तो चैलेंज होना चाहिए. 70 बोलूंगा तो यूपीएससी दे ही रहा है रिवॉर्ड तुम्हें मेंस लिखने का. हाँ हाँ, तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ ना अपने साइड से. हाँ 120 तक. हाँ ठीक है हाँ. हाँ वो तो है, दैट यूपीएससी इज गिविंग यू ऑलरेडी पार्टी मेंस लिखने की. अगर आप फॉरेस्ट में भी काम आएगा. हाँ वो जरा ना आपकी ना हमारे 100 पे डन करते हैं. चलो 130. 130 इज गुड. चल हाँ हाँ 130 ले आओ चलो. हाँ दिस 130 विल चेंज अगर पेपर बहुत इजी आ गया तो. पेपर लास्ट ईयर जैसा हो तब 130 का टारगेट है. तो 2015 के पेपर में 130 तो लाना कोई बड़ी बात नहीं है फिर. हाँ तो चलो ब्लैंक अगर आप चाहिए आपको तो 150 कोई भी पेपर में ले आओ. नहीं नहीं, आजकल यूपीएससी के पेपर लीक भी हो रहे हैं ना आजकल, बहुत सारे पेपर. सीएसआर का लीक हुआ अभी. सीएसआर के एग्जाम थी ना, पेपर लीक हुआ. सीएसआर लैब. हाँ तो लीक हो रहे पेपर भाई. सीएसआर क्या था एग्जाम का? असिस्टेंट. हाँ सीएसआर लैब जो होती है. ये होता है असली. देखो कार्तिक उधर मेरा 67 आ जाए मैं आपको पार्टी दूंगा. नहीं 67 आ जाएंगे. बट मतलब ऑफ कोर्स यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, मॉक्स देते रहना, बट उतने आ जाने चाहिए. अब मॉक कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा वो. हर कोई ऐसा बना रहा है ताकि बस लोगों को फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाए. हाँ यहाँ के मॉक मिल गया, सेकंड टेस्ट थर्ड टेस्ट दैट दे वर गुड. समीक्षा में दैट विल हैव टू सी, क्योंकि वो मैं नहीं बनाऊंगा ना पेपर. मैंने बोला था ना सैटरडे तक आप दे दो, संडे को दे देंगे रिजल्ट. नहीं बैच खत्म होने के बाद करेंगे ना. और जीएस स्टूडेंट्स आपका, जीएस स्टूडेंट आते तो है नहीं, एक भी बंदा है नहीं जीएस का. ऑफलाइन ना, ऑनलाइन तो हो आप गाइस. आर यू गाइस फ्री फ्रॉम 11 to 1:30? आप जो भी आपके 2 टॉपिक्स बचे हैं ना, जो ब्लड रिलेशन और क्लॉक्स, और एक कैलेंडर बचा है. ब्लड रिलेशन और क्लॉक के लिए आप 11 to 1:30 आ सकते हो? नहीं बहुत बिजी शेड्यूल है. इस हफ्ते नहीं, अब तो नेक्स्ट हफ्ते, नेक्स्ट वीक. अरे करंट अफेयर्स फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, मैं मंडे टू थर्सडे की बात कर रहा हूँ. हाँ अच्छा, क्योंकि यार ऑफलाइन कोई होता ही नहीं है तो आई हैव टू टीच एम्प्टी लेक्चर, एम्प्टी क्लास प्रीटी मच, ऐसा हो रहा है. हाँ अभी करो कोई नहीं होता ना. ऑल ऑफ यू गाइस आर 1. सीसैट 1.1 1.2.
अगर मैं उनके दो तीन एक्स्ट्रा बचे हैं ना टॉपिक, उसके लिए पूछ रहा हूँ। अनदर ऑप्शन इज कि मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर दूं आपके लिए, या फिर आपको लाइव लाइव ही करना है, बिकॉज ऑफलाइन तो कोई आता ही नहीं है, तो आपको ही पूछ रहा हूँ मैं बस। लाइव करते हैं, ठीक है, तो लाइव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप फिर 11 to 1:30 वाले बैच के साथ आ सकते हो तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज आई हैव टू टीच द एम्प्टी क्लास। इस वीक नहीं होगा कुछ, मतलब मेरे साइड से तो नहीं होगा। ठीक है, लाइव 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 इज फाइन, बट मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर आप 11 to 1:30 आ सकते हो तो इट विल बी इजियर फॉर मी, अदरवाइज आई हैव टू टीच द एम्प्टी क्लास एंड यू गाइस, सामने कोई नहीं होगा, अदरवाइज आप में से कुछ 4 लोग आ जाओ क्लास में। फाइन, लेट अस डिसाइड लेटर। आप सोच लेना। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सबने कर लिया अगर किसी का नहीं आया अरे नहीं नहीं, सही है कि नहीं बताऊंगा ना मैं। I'll solve quickly. Two friends X and Y start running and they run together for 50 meters in the same direction. Fine, 50. Then and reach a point. X turns right and runs 60 meters. This is 50. This is 60. This is X. This is Y. X runs right and to run 60 meters. Y runs left and runs 40 meters. Fine. Then X turns left and runs 50 meters and stops. Left right, north south एकदम ध्यान से करना. While Y turns right and runs 50 meters and then stops. How far are two friends? 60 plus 40. This is going to be a rectangle. 60 plus 40, 100 meters. Correct. Option number A. Very simple. Yes. Correct. Second question. Yes. Answer. पक्का? यश, गलत हो गया? गलत हो गया? See, both the statements have R in common. So let us put R here. First statement is city. ये ठीक है. City Q is 18 kilometers from city R. So meaning we draw a circle of radius 18 and Q is somewhere on this circle, because from a fixed point all the places at constant distance are going to be on circle. इसको radius बोला जाता है. So Q is somewhere on this circle. We don't know where. Statement 2. P is 43 kilometers from R. Again another circle, and P is somewhere on the bigger circle. Question is, where is P from Q? We don't know. P can be anywhere, Q can be anywhere. P यहाँ पे हो सकता है, Q यहाँ पे हो सकता है, P यहाँ पे, Q यहाँ पे, P यहाँ पे, Q यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है. ऐसे भी तो बन सकता है नहीं. Can you answer definitively? Why did you think that? Who told you? हाँ, that is one of the chance. ठीक है, अपोजिट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट these are there are infinitely many things to consider. It is not just about being in one direction or opposite direction. कोई बोला नहीं गया कि these three cities are linear. ये याद रखना आप. अगर एक और स्टेटमेंट देता मैं जिससे linear के लिए यूनिक आंसर आ जाता, then also it would have been wrong, because these cities can be anywhere on the circle. Correct? सोचा नहीं था. सोचनी चाहिए थी. लीनियर दिया नहीं ना कहीं पे, तो भी यही होता आंसर. आंसर वही होता अगर लीनियर होता तो भी, बट लीनियर है नहीं, कहीं मेंशन नहीं किया, तो आप अपनी साइड से क्यों अज्यूम कर रहे हो कि लीनियर? हाँ, स्ट्रेट लाइन में तीनों सिटीज एक लाइन में है, वो नहीं दिया है ना.
अगर देते भी तो भी एक डायरेक्शन में है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है वो पता नहीं. But this is more general way of thinking that it is anywhere on the circle. So answer here is D. Next. Yes, what is the answer? तीन व्हाइटनर लेके जाना कम से कम. बी. आपका सी आया, आपका डी आया. ओके. वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. हम ये नॉर्थ लेंगे जो मैप में लेते हैं. देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ. देन सेम डायरेक्शन. So she is here now. Then 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. यहाँ पे देख लिखा है टुवर्ड्स हर साउथ, बट हर साउथ कुछ नहीं होता, सबका साउथ एक ही होता है, साउथ ही होता है वो. एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट. जानबूझ के दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए. हर ईस्ट इज एवरीवन्स ईस्ट. ईस्ट इज ईस्ट. 8 kilometers towards east. This is 6. In which direction? She is from her starting position. So this is 8, 6. So this angle is going to be more than 45. Which direction she is from her starting point? Firstly, it is about northeast. This direction is northeast. So southeast तो हटा दो, southeast हटा दो. So B and D. From a starting point. हाँ, यहाँ से ये डायरेक्शन ना, मैं यहाँ पे खड़े होकर उधर देखूं. सो हाँ, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. एंड देन if you look at this direction from the starting point, so this angle they are asking. यहाँ पे अब confusion है. हाँ यही, they are not specifying which angle they are asking, so you can assume this angle, otherwise कोई option नहीं है आपके पास. Direction from her starting point. ये starting point है उसका. वो वहाँ पे है. हाँ अभी वहाँ पे है. उधर का एंगल है, यहाँ का एंगल. हाँ वही दिया नहीं है उन्होंने, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है. नहीं नहीं, ये तो यही का एंगल लेना है, बट ये लेना है कि ये लेना है. हाँ, so this side is 8, this side is 6, so this angle is clearly bigger than 45. So this angle is less than 45. ये 90 डिग्री है, so ये दोनों एंगल मिला के 90 होंगे. नहीं कुछ भी हो सकता है, 60-30 नहीं है ये, इज नॉट 60-30. हाँ, सो बट अपोजिट साइड इज बिगर, तो एंगल बिगर होगा ना उसके अपोजिट वाला. हाँ ये साइड 8 है, ये साइड 6 है. 8 के सामने वाला एंगल बड़ा होगा 6 के सामने वाला, दिख भी रहा है. सो ये एंगल बड़ा है 45 से, सो दिस एंगल विल बी स्मॉलर देन 45. सो आंसर इज बी. I think official answer is also B as far as I remember, but they have not specified which angle they are asking. हाँ ईस्ट के नॉर्थ, हाँ ये सही है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट. ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये. हाँ तो वही एंगल है एक्चुअली, they have specified actually. Okay, आंसर इज बी. 45 डिग्री एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट. कंसिडर करना है ईस्ट और उससे नॉर्थ जाना है, तो यू हैव लेस देन 45 डिग्री. इसी एंगल की बात हो रही है. ये हाँ ये, बिकॉज दिस एंगल इज मोर देन 45, दिस एंगल विल बी लेस देन 45. दोनों के आप कौन से एंगल है वो? एक्यूट ऑब्टूस. एक्यूट क्या होता है? These two angles are complementary angles. Both are acute angles. Acute angles वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं. Obtuse are 90 से ज्यादा. ये तो दोनों मिला के 90 है, तो obtuse कोई नहीं है. They are complementary angles. So if this is more than 45, this has to be less than 40. ठीक है, आंसर इज बी. नेक्स्ट.
क्या है आंसर? नॉर्थ वेस्ट आपका, सबका आंसर वही है। यस निरंजन। A man walks down back side of his house and straight 25 meters. अब ये इसका हाउस है मान लो, ठीक है, ये फ्रंट डोर है, पीछे से निकला है वो, तो लेट अस से ही वॉक्स स्ट्रेट फॉर 25 मीटर्स, ये पीछे की तरफ है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 50 मीटर्स, ठीक है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर्स अगेन। इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, तो अरे यार ईस्ट फेस करना था क्या, तो चलो इसको ईस्ट मान लेते, फॉर नाउ इसको ईस्ट मान लो, मान लोगे? ये है, चलो फेसिंग ईस्ट, ओके। अब 25 मीटर ही ट्रेवल स्ट्रेट, देन 50 मीटर्स एंड देन अगेन, थोड़ा 25 को कम कर देते, एंड देन अगेन 25 मीटर्स दिस साइड। हाँ अच्छा, उधर उधर लेफ्ट साइड से, हाँ उधर, हाँ 25 करो। if his house faces to the east, what is the direction from the starting point? Yes, north west. Again, these are not old questions. CSE 2120 is वही का question है वो। These are CSE 20 question है, बहुत पुराना नहीं है, so still relevant. Hope करो ये आ जाए। Next, इसका क्या है? 17, आपका कुछ और आया? अच्छा, okay. A started from his house and walked 20 meters towards east. अच्छा, चलो। Where his friend B joined him and together they walked 10 meters in the same direction. ये 20 है, together they walked in the same direction for another 10 meters. Okay. Then A turned left while B turned right and traveled 2 and 8. A turned left and traveled 2, B turned right and traveled 8. So A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, fine. Again B turned left and traveled 4. This is 4, fine. Followed by 5 meters to his right to reach his office. So 5 meters to his right. 5 meters to his right. What is the shortest distance between the two offices? अच्छा, ये है। Now this is the shortest distance, right? This is 5. This is 8 plus 2, 10. 10 plus 5, 15. This side is 12 minus 4. ये पूरा 12 था, minus 4, ये ना, this is यहाँ तक 4 है, so this is 8, this is 15, 8 15 ट्रिपलेट याद है, 8 15 17 ट्रिपलेट, this is going to be 17. हम्म 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 पीछे से निकल गया, क्या डाउन मतलब कहाँ जाएगा, नीचे जमीन में थोड़ी जाएगा, डाउन द बैक साइड इज काइंड ऑफ वे ऑफ सेइंग थिंग्स। हाँ, वॉकिंग डाउन द लेन, वॉकिंग डाउन द लेन का मतलब नीचे नहीं होता ना, वॉकिंग डाउन द लेन इज चलना, ठीक है, क्लियर। 8 15 17 ट्रिपलेट, याद है ट्रिपलेट, या फिर स्क्वायर करके ऐड किया, क्या किया, मैं बोला था थोड़ा सा याद रखोगे, 2 4 ट्रिपलेट तो आसान हो जाएगा, बट 8 15 17 ट्रिपलेट, कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है स्क्वायर एंड ऐड, दिस साइड इज 15, 15 स्क्वायर 225, दिस साइड इज 8, 8 स्क्वायर इज 64, 65 प्लस 225 289, टेक अ स्क्वायर रूट, यू विल गेट 70. नेक्स्ट,
क्या आया? डी. एवरीबॉडी? हाँ यश, नहीं आया? हाँ. A person climbs hill in straight path from O on the ground to the in the direction of northeast and reaches point A after traveling 5 kilometers. Fine. Then northeast travel कर रहा है. This is north. Then from this point he travels 5 kilometers and reaches the point. Then from the point A he moves to point B in the direction of northwest. 12 kilometer. This is A. This is B. Correct. Let the distance AB be 12. Correct. Now, how far is the person from starting point? 5, 12, triplet, 5, 12, 30. हाँ. Pythagoras, 5 square plus 12 square का square root. Northeast and northwest का direction. What will be this angle? 45, 45, 45, 45, 45 plus 45. Yes, यश कहाँ पे गलती हो गई? अच्छा, नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. नॉर्थ वेस्ट म्हणजे काय? वायव्य. नेम्स ऑफ डायरेक्शंस. आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य. पता है डायरेक्शंस के नेम? हाँ, नॉर्थ वेस्ट इज वायव्य. हाँ, नॉर्थ ईस्ट इज आग्नेय, नैऋत्य, यस, वायव्य एंड ईशान्य. Anyway, next question. बिल्कुल बिल्कुल. इंग्लिश में पढ़ लेना, आप वैसे भी इंग्लिश में ही पढ़ोगे. हाँ, पूर्वोत्तर भी बोला जा सकता है. पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं या फिर अग्नेय भी बोल सकते हैं. ईशान्य बोलते नहीं, नहीं, नॉर्थ ईस्ट इज ईशान्य है ना. पक्का नहीं. नैऋत्य मानसून, ये तो सुना होगा आपने. हिंदी में क्या बोलते हैं फिर मानसून को? हिंदी में मतलब साउथ ईस्ट मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून को क्या बोलेंगे? हाँ, नॉर्थ ईस्ट मानसून को या साउथ ईस्ट मानसून को क्या बोलते हैं आप? साउथ वेस्ट मानसून को? ईशान्य भारत बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट इज ईशान्य. हाँ, चलो एनीवे. हाँ, चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है. ये हो गया. A person walks 12 kilometers due north, then 15 kilometers due east. After that 19 kilometers due west. मतलब 15 ये और 4 ये. Then 15 kilometers due south. How far is he from the starting point? Starting point is this. So this is 4. 15 minus 12 is 3. So this is
यस क्वांट नहीं है, ये एलआर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person X was driving in a place where all roads are either north south or east west, forming a grid. So grid pattern अपना हरप्पा, fine. Roads are at a distance of 1 kilometers from each other and in parallel. ठीक है. He started at the intersection of two roads. Let us draw the roads. ऐसा कुछ है. ज्यादा है क्या? चलो ये कर लेते फिर. So let he start from here. Fine. He started at the intersection of two roads, drove 3 kilometers north. So 3 kilometers north, then 3 kilometers west. Here, 3 kilometers west, and then 4 kilometers south. 1, 2, 3, 4 kilometers south. Which further route could bring him back to his starting point if the same route is not repeated? 3 east and then 2 south, no. 3 east, 1 north. 3 east, 1 north. हाँ, नॉर्मली बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब उसने बोला है ग्रिड तो मैंने बना दी ग्रिड. मन कर गया ग्रिड बनाने का. Yes, next. B. Consider following statements. There are 6 villages. F is 1 kilometers to the east of D. So D is here. F is 1 kilometers to the east. Okay. B is 1 kilometer to the east of E. यहाँ पे तो E है नहीं. Let us find out D and F में से कोई और आगे है क्या? D is 1 kilometers to the south of A. हाँ 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 हाँ. F is 1 kilometer west of D. अच्छा. Now let us find out where F या D का mention है. D is here. D is 1 kilometer south of A. So D is 1 kilometer south of A. हाँ. अब A को ढूंढते हैं. A is 2 kilometer north of E. So E is here again. Then how about E? Then A, C is 1 kilometer east of A. C is 1 kilometer east of A. So this is C. और कोई बचा है? East of E. So here we have B. Okay. Which 3 are in straight line? ADE. बहुत ही easy question. Correct. You can simply plot it and get it done in 30 seconds. Next, location of B. ये वाला क्या आंसर है? 13. बोला ना, मैं 4-5 आपको बताया मैंने, आपको जो ट्रिपलेट्स याद रखने हैं. 5, 12, 13, 8, 15, 17 और वो 3, 4, 5 and 6, 8, 10. Most of the questions will be based on them. हाँ हाँ बिल्कुल. इसके आगे जा ही नहीं सकते. जाए तो अब ठीक है, कर लेंगे स्क्वायर. अब क्या कर सकते? 7, 40, 41. अब जाना है तो क्या कर सकते? 9, 40, 41. सॉरी, 9, 40, 41. हाँ बिल्कुल. Location of B is north of A. B is north of A and location of C is east of A. ठीक है. The distances AB and AC are 5 and 12. So what is the shortest distance between B and C? 5, 12, 13. इसे simple question नहीं हो सकता. Next, the houses of A and B face each other on the road
on a road going north south. Fine. Road is here north south. A is on the western side. So A का house इधर है, B का house इधर है. A comes out of his house. A इधर है, B इधर है. A comes out of his house. कहाँ गया? हाँ. Turns left, travels 5 kilometers. Turns right, travels 5 kilometers. ठीक है. In front of D's house. तो D का house इधर किधर है? हाँ? अच्छा. Okay. B does exactly the same and reaches front of C's house. So turns left and then turns right, na? Right. Turns right and travels. Correct. In this context, which of the following statement is correct? C and D live on the same street? बिल्कुल नहीं. C's house faces south? No. Then houses of C and D are less than 20 kilometers apart? Is this 20 kilometers? मतलब ये है ना? This is 5. So this is 5 root 2, 45, 45, 90 triangle, and this is 5 root 2. So this is 10 root 2. Root 2 is approximately 1.4. So it is approximately 14 kilometers, less than 20. So this is correct. Hmm? डायरेक्शन वही रहेगा दुनिया के लिए जो आपके लिए है, पर लेफ्ट राइट मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट ये है. क्लियर करेगा वो जो भी बोलना चाह रहा है. दे विल क्लियर इट अप. ईस्ट ऑफ इज लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट तो ईस्ट है. ईस्ट तो ईस्ट है. हाँ बिल्कुल, कहीं का भी ईस्ट देख लो. यस, कितने सही आए? यस, 11 आउट ऑफ 11. ग्रेट. क्या बात है. इजी टॉपिक था बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग दैट यू गॉट मोस्ट ऑफ देम करेक्ट. ईस्ट वेस्ट में दिक्कत हो गई. कार्तिकेय, मैंने बताया ना, ईस्ट तो ईस्ट होता है, वेस्ट तो वेस्ट होता है, चाहे जो वो किसी का भी हो. आपका और मेरा दोनों का ईस्ट सेम ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा. आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में बैठे हो, एवरीबॉडीज ईस्ट इज ईस्ट, एवरीबॉडीज वेस्ट इज वेस्ट. इस चैप्टर में आए तो बिल्कुल आए थे. नहीं नहीं, बर्गर जो खिलाया था. हाँ. यस, फुल लेंथ टेस्ट है ना अश्विनी, जो समीक्षा टेस्ट होगी, यू विल हैव एक्सेस टू दैट. समीक्षा की 4 फुल लेंथ टेस्ट होगी, उसमें आप 4 टेस्ट दे देना. कब? 1 तारीख को. हाँ. अच्छा. उसका उसमें तो नहीं आया ना. अब तुम जिस दिन नहीं आओगे उसका वेट करूंगा मैं. No, Ashwini, I won't be preparing Samiksha ka test, but we will be preparing from some guy outside. But I'll have a look. वो ठीक है. समीक्षा का फुल लेंथ टेस्ट वी रन, उसमें 4 फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हो और एक अपना भी सेक्शनल बचता है. विल टेक दैट आफ्टर अवर बैच इज ओवर. 24th वगैरह का जो भी संडे आएगा तब हम लोग 4 टेस्ट ले लेंगे अब. ठीक है. हाँ 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 बिल्कुल.
नहीं फुल लेंथ मतलब मैक्सिमम फोकस विल बी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी वाली चीज है, बट पिछले वाली भी पूछी तो जाएंगी। वह तो सिलोजिज्म पे 80 क्वेश्चन थोड़ी बनाऊंगा मैं। और 4 होंगे वो समीक्षा के टाइम पे होंगे। हाँ, दिस विल बी द फोर्थ सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल मीनिंग फोकस, मोर फोकस वुड बी ऑन द टॉपिक्स वी हैव स्टडीड लेटर, बट ऐसा नहीं है कि पहले का नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। क्या क्या पैसेज पे आ जाना है, 25 मिनट है, वी कैन स्टार्ट न्यू बुकलेट। बेटा पर यार इसमें होगी नहीं। सर है, अजय सर है, और कोई है? अरे यार, कॉम्प्रिहेंशन कर लेते तब तक। ठीक है। जो आज का जो बुकलेट है वो अपलोड करना था इस पे। हाँ मैं डाउनलोड करता हूँ फिर पोर्टल। हाँ एक साथ करने आपको सब। बहुत बड़ा है। अच्छा तो नहीं हो पाएगी मेरे अपने बातें हो सकती तो हाँ नहीं, पर प्रिपेयर तो होना चाहिए ना पेपर। आप ऐसे बोल दोगे तो ऐसे थोड़ी होगा। और सेक्शनल टेस्ट तो उसके लिए होना भी तो चाहिए, कवर पूरा करके ही करेंगे स्पोर्ट्स सेक्शनल टेस्ट में, बीच में कैसे होगा? और वर्कशीट सारी बाहर रखिए, आप जाते टाइम ले लेना जो भी बची है मतलब। यस हाँ, आप फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन वो एक एक ही करेंगे। आप फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन प्लीज रीड एंड सॉल्व। यस टाइम अप। हम्म, एवरीवन विल सी। हाँ अच्छा, लेट अस सी। बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर has started shrinking. Fine. Its decline has been a serious concern as credit growth is essential to revive investment. That we know. Credit चाहिए, credit के अलावा कुछ नहीं होता. The problem's origins lie in the incomplete reforms of the last 25 years. Again, author has given his opinion in the third statement. An institutional change that should have followed the 91 reforms should have been setting up of a resolution corporation for banks. What should have been done for banks? क्रेडिट की बात कर रहा है, क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट, और रीजन फॉर लैक ऑफ क्रेडिट इज लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और क्या नहीं हुआ? resolution corporation for banks have not been set. In a market economy with booms and busts, banks should be allowed to set up and fail. Bank should be allowed to fail, मतलब रिवाइव करते नहीं रहना चाहिए, रिकैपिटलाइज दैट शुड नॉट हैपन, दे शुड बी अलाउड टू फेल. Today we cannot shut down banks because there is no proper system to shut them down. Weak loss making banks continue to need more capital. Correct. So, because we cannot let our banks fail, because of many other reasons, we just keep capitalize them and they keep losing money. वो efficient है नहीं, तो वो घाटे का ही सौदा है अपने, and they are not able to provide credit to industrial sector. Overall, ये हो गया. We don't have any mechanism to let them fail properly. Question: most logical, rational inference that can be made from the above passage. A, Indian banking system is not able to help the country in its economic growth. Absolutely not. और आता कहां से क्रेडिट? इंडियन बैंकिंग सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट तो आता है. इट डज नॉट हेल्प इज नॉट ट्रू. बी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट स्टार्टेड इन 91 हैव नॉट हेल्प्ड in improving the economy to expected levels. Okay, fine. Let us see other options. कोई better हो तो देख लेंगे.
India lacks the institutional mechanisms to deal with the failure of banks. Yes. Most logical rational bola. Second is also true. But passage is about credit, banking system, and not having proper institutional mechanism to let them fail. So answer is going to be C, because that is the focus of the passage. And D, encouraging the foreign investment in our industrial sector is a good alternative to the sector's dependence on the credit. No, ऐसा कुछ बोला नहीं गया. This is quite a tangent to passage. Correct. हाँ. नहीं, this is fair. I mean, option वैसे तो correct है, but question is about most logical rational inference. Inferences can be multiple. The question is only most logical rational inference, and that will depend on what is the passage mainly about. हाँ, वही नहीं है बोल रहा है ना. We don't have mechanism to properly shut them down. That was the author's opinion from the get-go. Yes, most of you got it correct. Very good. Next passage. Start. Time starts. हो सकता है. Yes, we have done this question. Last 15 seconds. Don't solve next passage yet. Time लगाऊंगा ना मैं. Yes. Time up. बताओ. अच्छा. B. Okay. Bibas. Dog. D for dog. Online, everyone is with B. Everyone, मतलब उनका आंसर चेंज नहीं होता. हाँ. Okay, let us see. और ये हमने पैसेज किया है, बट पैसेज पे और क्वेश्चन था कोई. ये क्वेश्चन नहीं था. क्वेश्चन इज डिफरेंट. क्वेश्चन अलग था. For 2 or 3 generations past, ever increasing number of individuals have been living as workers merely, not as human beings. So author is speaking like Marx. An excessive amount of labor is the rule today in every circle of society, with the result that man's spiritual element cannot thrive. Right? Time नहीं है. बहुत overworked है everyone. He finds it very difficult to spend his little leisure in serious activities. थोड़ा टाइम मिलता है, कुछ टाइम पास देख लेते हैं, कुछ रील्स देख लेते हैं, उतना ही चाहिए. He does not want to think, or he cannot, even if he wants to. Firstly, he tries to blame the human, the person, that he's किसी को सोचना नहीं है, and then he says सोचना भी हो तो टाइम नहीं है. Even if he wants to, he does not have time. He seeks not self-improvement but entertainment, which would enable him to be mentally idle and to forget his usual activities.
बस एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा सा डोपामाइन चाहिए, तो ताकि बस सोचना नहीं है लाइफ के बारे में, कुछ सीरियस सोचना नहीं है, कुछ लाइफ के बारे में सोचना नहीं, जस्ट थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो जाओ ताकि। Therefore, the so-called culture of our age is dependent more on cinema than on theater, more on newspaper, magazines, and crime stories than on serious literature. Author is clearly uh, berating on age of our culture, so-called age of our culture. So, is really not fond of what is becoming of us. आप वो दिल्ली बुक फेयर गए हो? अभी वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है, आपको पता है? यस, इज ऑन गोइंग, यू वांट यू कैन गो। 18 तक है, प्रगति मैदान, प्रगति मैदान गेट नंबर 4 से जाना। अच्छा है, बट वीकडेज पे जाना। अच्छा, अभी तो यार मैं संडे गया था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, शाम तक है, आई थिंक। हाँ हाँ, शाम तक रहेगा। अच्छा, देख लो फिर। हाँ, निखिल सर तो मजे में है। जयपुर लिट फेस्ट देन वर्ल्ड बुक फेयर, निखिल सर। यस, मैं भी जयपुर में था तब, जब वो लिट फेस्ट चलता, बट मेरा फ्रेंड का वो था, रोका होका था, तो मैं जा नहीं पाया। हाँ। मैं जयपुर में था, मैं गया जा नहीं पाया। आई वॉज अदरवाइज बिजी, मेरे फ्रेंड का एक वो रोका था। मेरे एज में आके यही होता है। अगेन दिस वीकेंड, दैट इज व्हाई आई एम नॉट अवेलेबल, वन ऑफ माय फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड। यस, कल आ जाना। चाहिए तो ले लो, एक और वीक पढ़ाएंगे। चाहिए तो ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं चाहिए ना, तो क्यों निकाल? आज क्यों? अच्छा, आज क्यों चाहिए थी छुट्टी? ओ, तुम्हें चाहिए थी आज छुट्टी, सॉरी यार। सॉरी, मेरा तो एक और क्लास है बेटा। हाँ, क्या उठ चुका हूँ मैं? क्या 60 का हूँ क्या? क्या बात कर रहे हो? The passage is based on the idea that first, हाँ, the passage, हाँ, passage is based on the idea that man should not work hard. No, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। B, the great evil of our age is overstraining, overworked, overstrained, टाइम नहीं है। और क्या बताना चाहिए? C, man cannot think well. That is not true. He does not want to बोला है, या फिर he does not have time to. Of course man can think well. Yes. D, man cannot care for spiritual welfare. Can care but don't have time. हाँ, बिल्कुल सही। टाइम नहीं है भाई, 2 बजे तक क्लास है। आंसर इज बी, कार्तिक, आंसर इज बी। क्या टाइम हुआ है? हो जाएगा एक और पैसेज, हो जाएगा ना? तो चलो कर ही लेते हैं फिर। यस, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप. A, B, C, we have 3 answers. जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो क्या हो जाता है तुम लोग? A आ गया, A, B, C, B, D लग रहा है, A, B, C, D. Good. So we have 4 answers, A, B, C, D. Yes, निरंजन. थोड़ा बड़ा है क्या पैसेज? D लग रहा है. B. बड़ा तो नहीं है, ये तो फेयर साइज है. हम्म. 2 क्वेश्चन है क्या एक है? एक ही है. ओके. Mariana Mazzucato describes the rise of financial class in the value of everything. कोई बुक होगा इनका, उसमें बोलता है. The role of banks and financial institutions was to provide lubrication to the wheels of the real economy rather than making large profits themselves. So there, he or she होगा शायद, she is going to now criticize the bankers. The author is going to criticize the banker, जो भी होगा. तो ये उनको lubrication provide करना. Lubrication is basically credit, then rather than making large profit themselves. By the 21st century, production of the lubricant seems to have become the purpose of financial institution. But production या फिर खुद का फायदा लेना वही इनका पर्पस बन के ऐसे दिखता है. Innovative ways of making money from money also become the fastest way to increase personal wealth. पैसे से पैसा बनाना fastest way to increase personal wealth. Wealth creates wealth. Right? In capitalism, wealth always creates wealth. Inequalities have increased because a much larger share of wealth is sucked into the financial sector. जो बहुत बिलियनियर मिलियनियर होता है, he again invests that money and sucks more wealth in financial markets. तो ये चलता रहता है साइकिल, rather than going to the poor या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐसा कुछ होके बाकियों का फायदा नहीं होता इसमें. Rich gets richer in capitalism. Right? The rule of the economic game now are now set by the wealthiest. हमेशा से हमें ये पता है, rule of the game are always set by the wealthiest. पहले तो कम से कम राजा सेट करता था, अब तो wealthiest, richest will be setting the rules of the game. They influence government policies the most. Yes, definitely. The terms of trade, always crony capitalism. We always talk about crony capitalism in India and elsewhere. The terms of trade between money and labor are set in their favor. जो employer होता है, the employer will always set the terms of the trade. कितना पैसा दूंगा, कितना काम करना पड़ेगा, ज्यादा सैलरी चाहिए, करो फिर 18 घंटा काम वगैरह वगैरह. They can determine the wages they will pay to the workers and prices for the small enterprise. Small enterprise को भी वही decide करेंगे. कैसे? Small enterprises are the clients of big enterprises only. So पैसा कितना देंगे, कब देंगे, everything will be decided by big enterprises. We talk about this in MSME sector कि orders का पैसा time पे नहीं आता, इसलिए हमेशा credit का crunch होता है MSMEs के पास, right? Common citizens who earn with their personal labor as gig workers, small farmers, informal entrepreneurs, etc., live precariously. Do you know this word precariously? बुरी हालत में, on thin line. Formal jobs in large enterprises where workers could unite to demand fair treatment from employees are becoming fewer, and with the changing shape of the modern post-industrial economy. तो जो bigger corporates होते हैं जहाँ पे there are well-paying jobs, वहाँ पे unionization नहीं होता या फिर होने नहीं देते, right? Question: which of the following assumptions have been made in the passage? First, banks are not performing the role they are supposed to in the economy. True. उनका role, their role was supposed to be of lubricant, not of making money from themselves. But वो खुद का ही पैसा बना रहे हैं अभी. वो तो बोला है author ने that they are not performing the role they are supposed to performing. B. Second, the government's policy is geared towards tackling inequality as it is influenced by the wealthiest. उल्टा बोल रहा है.
Government policy is geared towards tackling inequality as it is influenced by the wealthiest. Not tackling inequality होना चाहिए ना, अगर तो कंसिस्टेंसी नहीं है स्टेटमेंट में ही. यहां पे बोल रहा है कि टैकलिंग इनइक्वालिटी, यहां पे बोल रहा है वेल्दिएस्ट की वजह से. वेल्दी लोग गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. वेल्दी लोग गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके इनइक्वालिटी कम करने को बोलेंगे क्या? हाँ. नहीं 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 नहीं. उसने बोला है कि गवर्नमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेल्दिएस्ट. So when it is influenced by the wealthiest, it will not work towards reducing inequality. So second is not correct. दो ऑप्शन तो गए. Third, precarious lives of workers are due to lack of avenues to unite in informal jobs. Hmm? Hmm. ऑथर का ओपिनियन क्या है? ऑथर अजम्पशन पूछा है ना. हम्म 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 हम्म. उसके पहले क्या बोला गया? ये है ना. हम्म हम्म. Where here formal jobs in large enterprises where worker could unite. Here worker could unite. There they cannot unite. हाँ. हम्म. They are not performing the way they are supposed to. The role they are supposed to. Author का overall opinion ही है ना कि everything is controlled by the wealthy. So are the banks. What is the role? Lubrication. Lubrication for everyone, not only for wealthiest. But author का opinion is always about that wealthy control everything. तो सबके लिए credit भी नहीं मिलता, inequality भी बढ़ती जाती है, and everything government runs for the wealthiest, etc. etc. हाँ. एक्सट्रीम कहाँ है? सपोज टू. दे आर सपोज टू. ये तो ऑथर का ओपिनियन है, उसने बोला है. फर्स्ट एंड थर्ड आंसर इज गोइंग टू बी ए. कहाँ रह गया? पैसेज रह गया. हिंदू एडिटोरियल हो सकता है यार. अच्छा. उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना रहे ना. हाँ हाँ. Okay guys, we'll do this passage tomorrow. नहीं नहीं, जो लास्ट लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? खत्म हो गया था वहां नहीं. सो न्यू ही स्टार्ट करना है. कल नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे. पजल्स एंड पैटर्न्स है क्या? नेटवर्क्स वाला एकदम वो दोनों कर लेंगे कल. ठीक है. टुमारो विल दोस टू टॉपिक्स. अब नेक्स्ट वीक. यस. हाँ. अच्छा. एंड गाइज वी वोंट हैव लेक्चर ऑन मंडे. जीएस गाइज, मंडे को आपका लेक्चर एसए के सर लेंगे, विश्वास सर. आई विल टेक द थर्सडेज लेक्चर व्हिच वाज सपोज्ड टू बी टेकन बाय हिम. ठीक है. मंडे को हूं नहीं मैं, इसलिए मंडे को लेक्चर नहीं. ट्यूसडे को विल हैव. ट्यूसडे से थर्सडे इनका होगा. फ्राइडे सैटरडे अपन कंटिन्यू कर लेंगे. फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे. हाँ. अच्छा.
हाँ ठीक है, जीएस गाइस। हाँ अच्छा ठीक है, जीएस गाइस विल मीट ऑन ट्यूसडे नाउ। मंडे को विश्वा सर विल टेक essay class and I'll take his Thursday's lecture. Okay, have a good day. टुमारो सीसेट 1.2 की क्लास है अश्विनी, जीएस की क्लास नहीं है कल, जीएस की कल आपकी एसए की क्लास है।